لہذا اس نے ہمارے لیے 4 عالم بنائے. ایک عالم ارواح میں رکھا، جب چاہا ماں کے پیٹ میں جو دنیا کی قبر ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں قبر میں زندگی کے، ان کو سمجھ لینا چاہیے رب ذوالجلال نے تمہارے اذہان کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ کو دنیا کا قبر بنا کر کے دیا ہے. کاش غور کرتے. فتفکروا یا اولی الالباب، اے عقل والو اگر تم عقل رکھتے ہو ذرا فکر تو کرو، غور تو کرو کہ میں نے اس دنیا کا قبر، جو زندہ قبر ماں کا پیٹ ہے، جس ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ والے قبر میں وہ رب ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے. 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ زندہ رکھ سکتا ہے. وہ خدا ہمیں مارنے کے بعد پھر اس آخرت والے قبر میں، جو آخرت کے مراحل وہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہاں زندہ نہیں کر سکتا. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ مساجد، دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یقیناً یہ ایصال ثواب کی ایک مجلس جس کا قیام پذیر حضرت مولانا ادریس صاحب کی دعوت پر ہماری حاضری، علماء کی حاضری، اتفاقی امر کہ حاضر ہو گئے. الحمدللہ آپ نے بہت دیر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ، اس کے رسول کے فرمودات اور فرامین کو سماعت کیا ہے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضری درج کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. دوستو، بزرگوں، لمبی چوڑی بات کا وقت بھی نہیں، اور باران رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے رحمت بنائے، زحمت نہ ہو کہ یہاں سے آپ اٹھ کے جا نہیں سکتے. جب تک جلسہ رہے گا بارش کی وجہ سے آپ جا بھی نہیں سکتے. بہرحال میں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں تلاوت کی ہیں.
सूरह मुल्क के अंदर रब्बे जुल जलाल अपने कुदरत कामिला का जिक्र फरमाते हैं कि बड़ी बरकतों वाला वो रब है जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात है, और उसी ने मौत को भी पैदा किया है, उसी ने हयात को पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, ये अल्लाह ने इसलिए कह दिया था कि बंदे ये न सोचें कि जिंदगी देने वाला कोई और, मारने वाला कोई और। अल्लाह हमारे जहन से खलजान को, हमारे शुकूक व शुबहात को दूर फरमा रहे हैं। ए बंदो समझ लो, जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत के घाट मैं ही उतारता हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम, क्यों देता हूँ मौत और हयात? ताकि मैं तुम्हें परखूं, जांचूं कि तुम में कौन अच्छे अमल का करने वाला है। ये हम अच्छे अमल में लग जाएं, देखें सुबह शाम रात दिन। अभी अभी हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब रफीक दर्स, नायब अमीर शरीयत उड़ीसा, नायब सदर जमीयतुल उलमा उड़ीसा के भतीजे, साले के बेटे, गालिबन भतीजे ही हो, भतीजे 25 साल की उम्र का बच्चा आंखों के सामने अभी आ रहा है टाटा से, कल तदफीन अमल में आएगा। तो अल्लाह ताला ये मौत हयात दे करके हमें समझा रहे हैं कि समझो मेरे बंदो कि तुम पूरी जिंदगी हमेशगी के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में, बल्कि कुछ वक्त के लिए मैं इस दुनिया में भेजा हूं, और वो वक्त भी मैं जानता हूं, तुम्हें नहीं बताया हूं, न किसी नबी को बताया, न किसी वली को इत्तला दी, बल्कि अल्लाह ने अपने इल्म में रखा। कौन कहां किस वक्त किस हाल में दुनिया से जाएगा, कौन किस हाल में किस वक्त इस धरती पे धरती को बसाने के लिए आएगा। किसी का कंधा नगीने पे नाम होता है, किसी का कंधन गिने पे नाम होता है, किसी के उम्र का लबरेज जाम होता है। अजब ये फानी सरा है कि जिसमें शामो सहर किसी का कुछ किसी का मकाम होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक उम्मती ने अर्ज किया, ए अल्लाह के लाडले नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरी दरखास्त है, उम्मत की तरफ से यह दरखास्त है कि रब्बे जुल जलाल से आप हम कलाम होते हैं, जरा हमारे लिए सहूलियात फराहम फरमा दे। रब्बे जुल जलाल हमारे लिए मौत का परवाना तो भेजेगा, लेकिन हमारी दरखास्त है कि 3 दिन पहले हमें इत्तला मिल जाए कि तीसरे दिन में हम मरने वाले हैं, दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल से दरखास्त पेश कर दी उम्मत की। रिवायत में आता है अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे लाडले नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत मेरे बंदों को सुबह शाम रात दिन ये नजारा दिखाता हूं कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इतने दिनों तक ये माजरा देखने के बाद जब वो इंसान सुधरता नहीं, 3 दिन में क्या सुधरेगा? 3 दिन के अंदर क्या सुधरेगा? हमने ये तय कर लिया बूढ़े होंगे तब जाकर के मरेंगे, ये हमने तय कर लिया है, लेकिन फैसले खुदाबंदी अल्लाह उसे गैब में रखे हैं। जब जिसके लिए परवाना भेजते हैं उसको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अल्लाह ने मौत हयात को इसलिए पैदा किया ताकि हम और आप उसके मानने वाले, उसके हुक्म पर चलने वाले बन जाएं। वो यही चाहता है कि मेरे बंदे, मेरी बंदियां अच्छे आमाल के करने वाले बन जाएं। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने आलम 4 बनाया, एक आलम अरवाह, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, एक आलम आखिरत। ये 4 आलम अल्लाह ने बनाया और हमें पैदा भी उसी ने किया है।
अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर चीज को पैदा करने वाला वही है। वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ही को हर चीज को पैदा किया है और अल्लाह हर चीज पर निगरां है, निगरानी किए हुए। हमारे नजर से ओझल है, हमारे नजर से ओझल है, लेकिन अल्लाह हर चीज पर निगरानी रखे हुए हैं। लिहाजा इंसान को जो पैदा किया है उसकी निगरानी में हम हैं। हम न समझे अलग बात है, लेकिन वो हम पर निगरान है। लिहाजा उसने हमारे लिए 4 आलम बनाए, एक आलम अरवाह में रखा। जब चाहा माँ के पेट में जो दुनिया की कब्र है, जो लोग इनकार करते हैं कब्र में जिंदगी के, उनको समझ लेना चाहिए रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे अज़हान को पाक करने के लिए, तुम्हारे जहनों में बिठाने के लिए रब्बे जुल जलाल ने माँ के पेट को दुनिया का कब्र बना करके दिया है। काश गौर करते, फतफक्करू या उलिल अलबाब, ए अकल वालों अगर तुम अकल रखते हो जरा फिक्र तो करो, गौर तो करो कि मैंने इस दुनिया का कब्र, जो जिंदा कब्र माँ का पेट है, जिस माँ के पेट में, माँ के पेट वाले कब्र में वो रब हमें जिंदा रख सकता है। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना जिंदा रख सकता है। वो खुदा हमें मारने के बाद फिर इस आखिरत वाले कब्र में, जो आखिरत के मराहिल वहां से शुरू होते हैं, वहां जिंदा नहीं कर सकता। वो रब जिसने हमें नापाक कतरे से शाहकार इंसान बना करके दुनिया में भेज सकता है, वो रब हमें पैदा कर देने के बाद फिर हमें दोबारा पैदा नहीं कर सकता। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने 4 आलम बनाया। जब चाहा आलम अरवाह में रखा, जब तक चाहा, जब चाहा दुनिया में भेजा। हम हैं, हमसे पहले भी थे, वो भी आए, उनके पहले भी थे, वो भी आए, अल्लाह ने भेजा, फिर उन्हें ले लिया, उन्हें ले लिया, उन्हें ले लिया, हम में से ले रहा है। और वो कहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अंफुसि वल-अंफुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वो कहा है कि तुम्हारी जानों में से किसी एक जान को तुम्हारे दरमियान से उठा लूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे बंदे मुझ पर सब्र करते हैं कि नहीं, मुझ पर ईमान यकीन जमाते हैं कि नहीं। ये अल्लाह हमसे देख रहा है। हमारे दरमियान से बच्चा उठा लेता है, जवान को उठा ले रहा है, बूढ़ा जिंदा है, नन्हा मासूम दुनिया घर से उठ के चला जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब निजाम खुदाबंदी है। तो अल्लाह ने जब कायनात बनाया, 4 आलम को बनाया, तो मालिक है वो। अब वो आप घर के मालिक हैं, इस घर के। घर बनाया, अलमीरा भी बनाते हैं, अलमीरे में 4 दराज बनाते हैं। अब आप सामान लाकर जिस दराज में चाहते हैं उस दराज में आप रखते हैं। किसी को मजालो सकत नहीं ये कह दे कि जनाब आली आपने तो घर बनाया है, दराज भी बनाई है, लिहाजा ये सामान यहाँ नहीं यहाँ रखिए, किसी को हक नहीं पहुँचता। इसलिए कि मैं घर का मालिक हूँ, जिस दराज में चाहूँ उस दराज में अपने सामान को पसंद करके रखो। रब्बे जुल जलाल कायनात का मालिक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पूरी कायनात जिसके कब्जे में है, वो कायनात का मालिक व खालिक। वो अपनी मर्जी से एक दराज में रखा रूह आलम अरवाह में, दूसरे दराज में रखा आलम दुनिया में, फिर यहाँ से निकाल कर तीसरे दराज आलम कब्र में ले जाएगा और फिर आखिरी आलम आखिरत में फिर उस दराज में हमें खड़ा करेगा ताकि मेरे बंदे मेरे सामने जवाब दे कि तुमने दुनिया में जाकर क्या क्या अंजाम दिए, अपनी मर्जी वाले काम कितने किए और मेरी मर्जी वाले काम कितने किए। अगर मेरी मर्जी वाले काम करके आए हो तो तुम्हारे लिए है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बड़े खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो खुदा की रजा, खुदा की रब चाहिए जिंदगी गुजार के जाते हैं। अल्लाह उन्हें कहेगा तुमने मेरी बंदगी को कबूल किया, लिहाजा मेरी जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ।
अब अगर कोई सोचे हम अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, रब चाही जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो ये भूल जाए कि वो जन्नत में अल्लाह की पसंदीदा जगह में जाएगा, चला जाएगा, नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह मालिक है दुनिया का भी, आखिरत भी कभी। पूरी कायनात पर जितनी चीजें हैं सब पर हुक्मरान अल्लाह अकेला है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज पर कुदरत, हुक्मरानी उसी रब की है। तो उस रब को मान करके जाएंगे तो अपनी जगह, अपनी पसंदीदा जगह, जिसके बारे में अल्लाह कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह कहते हैं अगर तुम मेरी मान के आ जाओगे तो मैं तुम्हारी कल मानूंगा जन्नत में। हजरत मौलाना कासिम नानोती हुज्जतुल इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से किसी ने फरमाया, कहा कि हजरत 2 जुमले में जन्नत क्या है बता दीजिए, 2 जुमले में बता दीजिए। अल्लाह वाले थे, इल्म का समंदर था, कूजे में समंदर को भर देते थे। फरमाया छोटी खुदाई। जन्नत के बारे में क्या फरमाया? छोटी खुदाई। यहाँ ने यानी पूरी कायनात में अल्लाह की खुदाई चलती है। जन्नत में अल्लाह ने कहा है ए मेरे बंदो, ए मेरी बंदियों, तुम मेरी मान के आ जाओ, मैं तुम्हारी मानूंगा। तुम जो चाहोगे, जिस वक्त चाहोगे, जितना चाहोगे, सारी चीजें तुम्हारे लिए मौजूद होंगी, बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी तकलीफ, बगैर किसी मशक्कत के वो नेमतें तुम्हारे पास अल्लाह मौजूद कर देगा। हदीस पाक में आता है रसूल करीम सैयद आलम को जब मेराज नसीब हुआ जिब्रील अमीन से, आपने फरमाया ए जिब्रील अमीन, ये मोती का ये क्या सामान है कि जिसमें ना कुछ दरार है, ना दरीचा है, ना दरवाजा है, ये क्या है? जिब्रील अमीन उसके करीब ले गए, उस मोती की बिल्डिंग के पास। आज दुनिया हैरत में है। आवाज लगाई तो पता नहीं अरब अजम के आवाज, तिलावत, नात, तकरीर, आवाज लगाई फलाने की तकरीर, फौरन हाजिर मोबाइल में। अल्लाह इस नबी की उन बातों को, इस तस्दीक के लिए अल्लाह इन चीजों को बनाया, पैदा किया। रिवायत में आता है जिब्रील अमीन ले जा करके आपको खड़ा किया और फरमाया ए अल्लाह के लाडले हबीब, एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोती की बिल्डिंग के पास खड़े होकर के जो ही पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया। खुलता ना ऑटोमेटिकली आवाज लगाते ही जी। दुनिया हैरत में है कि साइंस ने इतना ताड़ दिया, दुनिया परेशान है कि साइंस ने इतना कमाल दिखा दिया। अरे अल्लाह के लाडलो, अल्लाह के दीन को कबूल करने वालों, अल्लाह के दीन में वो बातें आज भी मौजूद हैं जिसको हम जानते नहीं, जिसकी वजह से हम यकीन नहीं करते। जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने जो ही पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस मोती की बिल्डिंग का एक दरवाजा ऑटोमेटिकली खुला, जबकि कोई निशान तक नहीं था। हजरत जिब्रील अमीन अंदर ले गए, देखा कि एक जगह अंदर में सुनहरे हुरूफ से लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फरमाया उसके नीचे 3 नहरें जारी हैं, एक मीठे पानी की नहर और एक दूध की नहर और एक शहद की नहर। देखते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नून के नीचे से मीठे पानी की नहर जारी है, अर्रहीम के मीम के नीचे से दूध का नहर जारी है, और अर्रहमान अर्रहीम के मीम के नीचे से शहद की नहर जारी है। आज लोग देखते हैं मोबाइल में
कि पानी भी हिल रहा है, मछलियां भी तैर रही हैं, जबकि न उसके अंदर मछली है न पानी है। उठाकर देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी भी थे और बादशाह थे, अल्लाह ने ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी जिन्नातों के जरिए से, ऐसा पत्थर नस्ब किया था अपने दालान में कि जब बिल्कीस आती है मलके सबा और पैर रखती है तो समझती है कि पानी है, कपड़ा उठाकर पैर रखती है, जब देखती है कि सपाट पत्थर है हैरत में पड़ जाती है। ये कौन महान बादशाह है कि जिसके कब्जे में पत्थर, जिसके नीचे पानी तैर रहा है, देखने में नजर आ रहा है लेकिन वो है नहीं पानी बल्कि पत्थर ही पत्थर है। याद करो उस जमाने को अल्लाह ने वो करतब भी दिखा दिया ताकि साइंसदान वो उसकी मिसाल पेश न कर सके। आज हमारे मोबाइल में देखकर मेरा नौजवान बहुत ताज्जुब में पड़ जाता है। बहरहाल भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मौलाना इदरीस साहब, हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब भी तशरीफ ले आए। मैं तफसील के वक्त का हामिल भी नहीं। बहरहाल मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, तुम दुनिया में जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे अजनबी हो तुम इस दुनिया के लिए, कोई शनाशा नहीं, अजनबी। और कितना वक्त है तुम्हें यहाँ से वहां जाने के लिए, जैसे इस रोड से उस रोड को पार करके जाना, बस इतनी है जिंदगी हमारी। रास्ते में आदमी खड़ा रहता है, आवाजाही चलती रहती है, अब इसको उस तरफ पहुंचना है तो इंतजार थोड़ा सा करता है, जब लोग गुजर जाते हैं रोड पार कर जाता है। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी जिंदगी, हमारी जिंदगी, कायनात की जिंदगी को अल्लाह ने इतना ही बनाया है, इतने थोड़ी दिन की जिंदगी के लिए, और इतना बड़ा कारनामा करने को दिया है जो हमेशा हमेशा की जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी है। लिहाजा वहां के लिए हम फिक्र करें, वहां के लिए हम तैयारी करें जहां हमेशा हमेशा रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।